So in the last class, we were discussing about the sizes. है ना? So these sizes are generated by the geometric progression. So let's take the pen first. So we have generally discussed about the 5 basic series. So basic series are basic series. The first basic series is R5, then R10, R20, and so on. And R40 and R80. What is the series factor for R80? Anyone from you? 5 is the series factor. Sir, 10 to the power 10 to the power 1 by 80. Very good. And what is its value? Its value is 1.03. It means there is a 3% increment between two adjoining terms. And similarly, R40 is 6% increment. It is 12% increment. It is how much? 26% increment. 26%. And it is 58% increment. Okay, these are the 5 basic series given by Charles Renaud. So suppose a company is interested in starting his business by 21 models. By 21 models, then which series will be best suitable for us? R5. No, R20. R20. R20 will be best suitable because R20 will contain 21 terms. The geometric progression of R20 will contain 21 terms, then that 21 terms will be our 21 models. If a company is interested in suppose 11 terms, 11 models, then which series is suitable for us? R10 will be suitable for us. Suppose a company is interested in only 7 models. Company is interested in only 7 models, then which series will be suitable for us? R5. No, R5 will give only 6 models to us, but company is interested in 7 models, so R6 will not be suitable for us, because when we expand, the previous 6 models or 7 models will be included in the further models. Expansion should be in such a way that initial models should be incorporated in the future models. So if a company is interested in 7 models, then none of these series will be suitable for us. So in that case, we will generate the series R6 will be there. We are not bound to the series given by Charles Renaud. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चार्ल्स रेनार्ड को ही फॉलो करना है. It is just an idea. If there is some special requirement, 7 models, then our series, suitable series will be R6. So what is the series factor for R6? Anyone? What is the series factor for R6? In the similar way, 10 to the power 1 by 6. 1/6. वेरी गुड. है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें चार्ल्स रेनार्ड को बिल्कुल कॉपी करना है. हम अपने विवेक से देखेंगे हमें कितने मॉडल्स चाहिए और हम उसी सीरीज का यूज करेंगे. ठीक है, तो अब जरा सा ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. ये 5 बेसिक सीरीज होती हैं और इन 5 बेसिक सीरीज की हेल्प से फिर हम जो और सीरीज डिराइव करते हैं वो डिराइव सीरीज हो जाती हैं एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट. है ना? तो फिलहाल मैं मान लीजिए इसका एक क्लियर कर देता हूं. So now the first question is very simple. I think we have done this question in the last class. Find out the numbers of the R5 basic series from 1 to 10. We have done this question. We are skipping it, and we have also done this question also. In the last class we have done 2 questions. So what is the series? वाला नहीं हुआ था सर. कौन सा वाला? वाला नहीं हुआ था सर. ये भी हो गया था. देखिए आप अपनी कॉपी में यदि नोट करते हो तो मुझे तो खूब अच्छी तरह याद है कि ये भी हो गया था. और बच्चे बताएं, आपको याद होगा कि हमने यस सर हो गया था सेकंड एग्जाम पे. हाँ बिल्कुल हो गया था. है ना? वेरी गुड. तो देखिए फाई की वैल्यू
R20 के लिए 10 to the power 1/20 होती है, लेकिन यहाँ पे 20/4 लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो फाई नेट है, एक्चुअल फाई विल बी 10 to the power 1/20 जो पहले से है to the power 4। तो हमारा फाई जो है वो 10 to the power 1/5 हो जाएगा, है ना। एक तरह से ये R5 सीरीज में कन्वर्ट हो गया। R10 to the power 1/5 क्या होता है? R5 सीरीज का सीरीज फैक्टर होता है। तो R20/4 एंड R5 का जो सीरीज फैक्टर है दैट इज कमिंग कॉमन, वो एक ही चीज हो गई लगभग। So these two questions we have done in the last class. So we are moving to the next question. So in this question, a manufacturer is interested in starting a business with 5 different models. So he is interested in 5 models. 5 models मतलब we need 5 terms. When we need 5 terms, our series should be which series? R4 सीरीज होना चाहिए ना। एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, गेट में भी आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि अब हमें कौन सी सीरीज पे काम करना है। तो विद 5 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम 7.5 to 75। 7.5 किलोवाट इज द फर्स्ट टर्म एंड 75 किलोवाट इज द लास्ट टर्म। दिस इज द रेंज, है ना। सपोज अभी तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि 5 टर्म्स हैं तो R4 चाहिए। मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि R4 चाहिए, है ना, अपने आप निकल के आएगा। देखिए R4 कैसे निकलेगा। जो लास्ट टर्म होता है उसे हम कंसीडर करते हैं nth टर्म ऑफ द जीपी। सो लेट दिस इज द nth टर्म। सो nth टर्म इज गिवन बाय a phi to the power n-1, है ना, AR to the power n-1, but here we are using series factor, so it is a phi to the power n-1 equal to 75. Now a is the first term and first term is 7.5, so you can put over here 7.5 phi to the power n-1. N is the number of models. So what is the number of models given in the question? What is the number of models given in the question? 5 models. 5 models. So n equal to 5. We can put n equal to 5. So 5 minus 1 equal to 75. So 5 to the power 4 is 75 divided by 7.5. 75 divided by 7.5. So it is 10. So phi equal to 10 to the power 1/4. So this is our series factor. ठीक है। So 10 to the power 1/4 means it is R4 series basically. तो आप पहले से अंदाजा भी लगा सकते हैं, और आपको अंदाजा नहीं लग रहा है तो आप nth टर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यू कंसीडर द लास्ट टर्म एज द nth टर्म and then find the series factor for that particular series. So here phi equal to 10 to the power 1/4. Okay. So the first, now we can find the models. So in this case, first model is 7.5, the next model is 7.5 into phi, then 7.5 into phi to the power 2, then 7.5 into phi to the power 3, 7.5 phi to the power 4. So 1, 2, 3, 4, 5. So this is 7.5. 7.5 multiplied by 5. कैलकुलेट करिए जरा, बताइए। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? 7.5 into 10 to the power 1/4 कीजिए, कितना आता है? सॉल्व करके बताइए। मैं भी कर रहा हूँ। 13.34 13.34, वेरी गुड, है ना। सो इट इज 13.34। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23.72 23.72। चलिए नेक्स्ट। 42.18 42.18, और नेक्स्ट तो 75 ही आ जाएगा, है ना। सो दीज आर द 5 किलोवाट। ये सबकी यूनिट क्या है? किलोवाट्स में यूनिट है, because in question it is given in kilowatt capacity. So these are the 5 capacities for the tractor models initially, है ना। So आधा क्वेश्चन तो हो गया। Company is interested in 5 different models of the ranging from 7.5 to 75. Correct? Sir?
हाँ सर एक बात पूछनी है सर, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 5 मॉडल्स की कही है, हाँ। अब जैसे सर कभी सर 1000 या फिर 100 मॉडल के आसपास कहेगा तो सर कैसे बनाएंगे सर? 100 मॉडल्स के आसपास यदि आपको बनाना है तो देखो, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो एकदम तो 100 मॉडल्स पे जाएगी नहीं वो, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। लेकिन मान लीजिए, चलो आपका क्वेश्चन मान लेते हैं कि भाई बहुत पैसे वाला है और वो शुरू से ही 100 मॉडल्स पे जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 100 मॉडल्स पे जा रहा है तो यू नीड 100 टर्म्स, and if you need 100 terms, then which series will be suitable for you? R99 series will be suitable for you. In that case, your series factor will be 10 to the power 1 by 99. है ना? Similar fashion, no problem. You can हाँ, yes, calculate, है ना? No, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कितने भी terms हो. GB is valid for all. So now in this case, mute करिए जरा. अरे mute all the participants, please mute your mic. Yes, sir. हाँ. So now 7 these are the cap. अब क्वेश्चन को आगे देखिए. Specify power capacities of the models. ये तो हमने कर लिया. पावर, ये सब पावर कैपेसिटीज ही निकली है. दिस इज फर्स्ट पावर कैपेसिटी, सेकंड पावर कैपेसिटी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हम निकाल चुके. स्पेसिफाई द पावर कैपेसिटीज ऑफ द मॉडल्स. तो दिस पार्ट इज कंप्लीट. नाउ देयर इज ए एक्सपेंशन प्लान. देयर इज एन एक्सपेंशन प्लान टू फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉडल्स फ्रॉम 5 to 9. This is important. Now the company is interested in expanding these 5 models to 9 models. तो हम ये जरूर चाहेंगे कि ये पुराने वाले 5 मॉडल एग्जिस्ट करें. ऐसा ना हो कि एकदम से नए मॉडल आ जाएं. एकदम से नए मॉडल आएंगे देन हमको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है ना? तो ये पुराने वाले 5 मॉडल एग्जिस्ट करने चाहिए और इसमें नए 4 मॉडल इंसर्ट होने चाहिए. ठीक है ना? यही खूबी है ज्योमेट्रिक एक्सपेंशन की. तो अब हमको कितने मॉडल्स चाहिए? टोटल 9 मॉडल्स वी वांट. सो फर्स्ट मॉडल इज 7.5, the next model is 7.5 into 5, then 7.5 into 5 square dot 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 in this way, and the last model will be 9th term, so it is 7.5 5 to the power 9 minus 1. 7.5 into 5 to the power n minus 1, 9 minus 1 is 8, so the last term will be 7.5 into 10 to the power 8. This will be the last term. Now this last term should be equal to our last value 75. So we can write 7.5 5 to the power 8 equal to 75. So 5 to the power 8 will be 75 divided by 7.5, that is 10. So 5 equal to 10 to the power 1 by 8. So our new series factor, the initial series factor was 10 to the power 1 by 4, 5 initial, and now the new phi n is 10 to the power 1 by 8. Okay, so our series will be 7.5 is the first capacity. The second capacity is 7.5 into 10 to the power 1 by 8. Multiply करिए और बताइए कितना आ रहा है. सर. हाँ. हेलो सर. यस यस बोलिए. सर मुझे सर यही बात पूछनी है कि सर जैसे सर यहाँ पे तो 4 मेंबर्स हैं, तो हमने 7.5 into 5 7.5 into 5 स्क्वायर ऐसे कर लिया. तो जैसे 100 मेंबर होंगे तो 100 के लिए पूरी यही चीज फॉलो होगी सर? डॉट डॉट लगा दीजिए ना. शुरू के 3 टर्म दिखाइए, उसके बाद डॉट डॉट लगाइए. देखिए मैंने यहाँ पर भी तो डॉट डॉट लगा दिया है पूरा. ये लगा दिया ना डॉट डॉट. आप डॉट डॉट, हाँ डॉट डॉट लगा दीजिए. दैट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना? और आजकल तो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट हैं कि आप एक्सेल में कहीं पर भी कैलकुलेशन करेंगे 100 क्या 1000 मॉडल लगा दीजिए. मैटलैब है आपके पास, आप निकाल लीजिए सारी कैपेसिटी, है ना? समझाने के लिए डॉट डॉट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम. ओके सर. हाँ ओके सर. तो 7.5 into 10 to the power 1 by 8 इसकी वैल्यू बताइए. सर 10 आई है अप्रोक्सीमेट. नहीं एग्जैक्ट बताइए. एग्जैक्ट 10.0. 10.0014. 001. चलो तो 10 ही मान लेते हैं. दूसरा अगला बोलिए. 13.33. कितना? 13.33. 19.33. 13.33. चलिए नेक्स्ट. 15.78. 15.78. बोलते जाइए. 15.78.
15 ना 17 17.78, चलिए ठीक है 17 कर दिया मैंने उसे, है ना? मैं उसे 3.71 17 हो गया। इसकी अगली वैल्यू क्या है? 23.71 23.71। बोलते जाइए जल्दी जल्दी। 31.62 31.62। नेक्स्ट 52.17 52.17। 42 42, चलिए नेक्स्ट 56.24 56.24। नेक्स्ट 75 75। तो अब ये काउंट करेंगे तो ये 9 मॉडल्स हो गए होंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो अब कंपनी के लिए जो नई सीरीज है वो ये वाली सीरीज है, दीज 9 मॉडल्स। अब इन 9 मॉडल्स की सीरीज में ये खूबी है कि पुराने वाले 5 मॉडल, जैसे कि पहला मॉडल कितना था 7.5, तो यहाँ पर भी 7.5 एग्जिस्ट करता है। पुराना मॉडल कितना था 13.34, तो यहाँ पर भी 13.34 एग्जिस्ट करता है। 13.34 या 13.33 बात एक ही है। और इन दोनों के बीच में एक नया मॉडल इंसर्ट हो गया है 10, ये नया मॉडल है, बाकी ये दोनों पुराने मॉडल्स हैं। उसके बाद देखिए 23.72, 23.72 ये वाला मॉडल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। 42.18 वाला मॉडल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना? और 75 जो लास्ट मॉडल है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आप ये चेक कर पा रहे हैं कि पुराने वाले जो 5 मॉडल हैं वो नए वाले 9 मॉडल्स का पार्ट है ना? तो आपके रिसोर्सेस में जो इंक्रीमेंट होगा वो केवल इन 4 मॉडल्स की वजह से ही होने वाला है। तो आपकी काफी सारी पुराने वाली कॉस्ट सेविंग हो रही है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखिए इसमें कुछ नहीं है, पहले 5 मॉडल्स हैं, हमारा सीरीज फैक्टर 10 टू द पावर 1/4 है और हमने उन 5 मॉडल्स को कैलकुलेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है। एक्सपेंशन प्लान इस तरह से करना है कि पुराने 5 मॉडल एग्जिस्ट करें, पुराने 5 मॉडल एग्जिस्ट करें, ये हमको जीपी में ही मिलेगा नेचुरली, हमको जीपी ही यूज करनी है। चार्ल्स रेनॉल्ड की गाइडलाइंस है कि हमें जीपी ही यूज करना है। तो उस केस में हमारे 9 मॉडल्स के लिए जो नया सीरीज फैक्टर है वो सीरीज फैक्टर हमारा हो जाएगा कितना 10 टू द पावर 1/8। So this is our new series factor, and with the help of this new series factor we are getting the 9 models. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, specify the power capacities of the additional models. So तो additional models कौन कौन से हो गए? This 10 is the additional model, 17.78 is additional, 31.62 is additional, and 56.24 is additional. So these are the 4 additional models. So this question is complete from my side. If there is any query, you can ask. Otherwise, we will move to next question. Is there any query? Clear हो गया है? क्वेश्चन सिंपल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेस पर है। Now we are moving to next question. So this is the next question. It is required to standardize 11 shafts from 100 to 1000 millimeter diameter. Specify their diameters. है ना? बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग करिए और आप ही आंसर बताइए इसका। 2 मिनट का जीरो सेशन रखते हैं, है ना? टेक 2 minutes फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको 11 मॉडल्स की रेंज बतानी है मुझे, आप लोग बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? तो देखिए 11 मैंने लिख लिया। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 100, लास्ट वैल्यू क्या होगी 105 लास्ट वैल्यू 1000 हो जाएगी, है ना? अब इनके बीच में 9 वैल्यूज आपको और बतानी है। तो टेक 1 मिनट, आप लोग अपने कैलकुलेटर उठाएं सभी और सीरीज फैक्टर बताएं। इस केस में सीरीज फैक्टर क्या होगा? R10 sir, सीरीज फैक्टर विल बी 10 टू द पावर 1/10. 1/10। सीरीज R10 होगी और जो सीरीज फैक्टर है वो कितना होगा 10 टू द पावर 1/10 होगा। और 10 टू द पावर 1/10 की वैल्यू क्या होती है 1.26. 1.26 के आसपास होती है। बस आप 1.26 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा।
बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, एक एक दो दो नंबर में आते हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस मल्टीप्लाई का गेम है। फाइंड द सीरीज फैक्टर एंड फाइंड दी डिफरेंट डायमीटर्स। तो ये चीज किसी पे भी चल सकती है, डायमीटर निकालने के लिए, आरपीएम निकालने के लिए, पावर कैपेसिटीज निकालने के लिए, यूनिट कुछ भी हो सकती है। सो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप कर लेंगे ना, पहला हो 120 जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। नाउ इट इज मच वेरी मच क्लियर, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ द R10 बेसिक सीरीज फ्रॉम 1 to 10। सभी लोग कर लेंगे आई थिंक। यस सर। चलिए इसको भी स्किप कर हो देते हैं। जाएगा। हाँ, बड़े आराम से हो जाएगा। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ द R20/3। R20/3 इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 200, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसका नॉट गिवन। इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? 5 हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। पावर 3/20 बड़े आराम से हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म तो पता है, तो फर्स्ट टर्म इज 200, है ना। R20/3 है, इसका मतलब इसका जो 5 है वो हो जाएगा 10 to the power 1/20 होल पावर 3। ये इसका 5 हो जाएगा, एग्जैक्ट 5। बस इस 5 से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, है ना, और मल्टीप्लाई करके आपको टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे, कितने मॉडल्स मिलेंगे, बता सकता है कोई? हाउ मच मॉडल्स यू विल गेट? देखो R20 में आपको 21 मॉडल्स मिलते हैं। कितने मॉडल्स मिलते हैं? 21। एक ज्यादा मिलता है ना, R20 में 21। लेकिन हम हर तीसरा मॉडल ले रहे हैं, हम 2 मॉडल छोड़ के तीसरा मॉडल ले रहे हैं। हर तीसरा 7 मॉडल मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो 7 मॉडल्स यू विल गेट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म इज 200, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा। मल्टीप्लाई किससे करना है? इस नए वाले सीरीज फैक्टर से करना है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 7वां टर्म जब आपको मिल जाएगा, तो वो 7वां टर्म कितना होगा? 2000 होगा। ये पहला टर्म यदि 200 है तो 7वां टर्म कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 10 टाइम्स आ जाता है। ये जो 10 के फैक्टर में सीरीज होती हैं, R10 वगैरह, इन सब में जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म का 10 टाइम्स होता है। कितना होता है? 10 टाइम्स होता है। तो आप खुद, इसलिए इसमें लास्ट टर्म दिया भी नहीं है, ना भी दिया हो तो आप अंडरस्टूड है कि ये लास्ट टर्म 2000 होगा। सर ये 7 मॉडल समझ में नहीं आए सर, कैसे हुए, एक बार फिर से बताइए। 7 मॉडल्स कैसे हुए? देखिए, R20 मान लीजिए ये 3 नहीं है फिलहाल, तो R20 में स्टार्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले टर्म आएगा 200, उसके बाद आएगा 200 × 5, फिर आएगा 200 × 5 स्क्वायर, और ये डॉट 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 करते हुए लास्ट टर्म आएगा 200 × 5 to the power n-1, है ना। तो 5 to the power 20, n की वैल्यू 21 है। R20 के केस में हमें कितने मॉडल्स मिलते हैं? 21। तो n-1 nth टर्म के लिए तो 520, ये हमारी सीरीज होगी। तो टोटल टर्म इसमें कितने हैं? 21 टर्म है। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये कौन सा टर्म है? 21, 21वां टर्म है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? हमें R20 नहीं लेना है, R20/3 लेना है। तो 20/3 का मतलब होता है एवरी थर्ड टर्म, एवरी थर्ड टर्म। तो आपको पहला टर्म लेना है, उसके बाद पहला दूसरा छोड़ देना है, उसके अगले वाला लेना है। तो देखिए अब नए टर्म आपके क्या होंगे? ये पहला, ये दूसरा, बीच में आपने 2 टर्म छोड़ दिए। अब इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो फिर से आप 2 टर्म छोड़ देंगे और तीसरा वाला टर्म आप ले लेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा आप करते जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? 2 टर्म छोड़ते जा रहे हैं, तीसरा टर्म लेते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ R20/3 का वो लगा हुआ है, राइडर लगा हुआ है। तो आप ये सोच लीजिए कि जब 21 मॉडल हैं और हम हर तीसरा टर्म ले रहे हैं, तो हमें टोटल कितने टर्म मिलने वाले हैं? 7 टर्म्स मिलने वाले हैं। हाँ, बस सिंपल लॉजिक। आई थिंक अब तो क्लियर होगा। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया। नाउ वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा पहले से प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होता है, तभी हो पाते हैं, अन्यथा ये बहुत टफ लगते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे अपने आप, देखो पढ़ के देखो। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्डाइज लोड कैरिंग कैपेसिटीज ऑफ द डंपर्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, डंपर्स का क्वेश्चन है।
the maximum and minimum capacities of such dampers are 40 and 630. तो पहली कैपेसिटी है 40, लास्ट कैपेसिटी है 630. The company is interested in developing the models in this range. ठीक है, specify their load carrying capacities. बताइए कौन कौन कर सकता है और प्रोसेस बताइए कैसे करेंगे. सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए तो फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया 40, फर्स्ट टर्म इज 40, लास्ट टर्म इज 630. 630 10 दिया गया है 7. हाँ, R6 सीरीज लग जाएगी सर इसमें. हाँ. कितने डंपर्स लेंगे आप, क्या सीरीज फैक्टर क्या होगा ये बताइए, एंड हाउ मेनी टर्म्स होंगे. सर 10 to the power 1/6 हो जाएगी सर. 10 to the power 1/6 मतलब 7 डंपर्स. सर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 डंपर्स बनाने हैं. इज इट मेंशन इन द क्वेश्चन कि हमको 7 मॉडल्स बनाने हैं. यस सर. है ना. द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग 7 मॉडल्स इन दिस रेंज, स्पेसिफाई देयर लोड कैरिंग कैपेसिटीज. ठीक है, तो इसको लास्ट टर्म मानकर आप क्या करेंगे, सीरीज फैक्टर कैलकुलेट करेंगे पहले. अभी यहाँ पर सीरीज फैक्टर जो है ये 40 है और यहाँ पर 400 नहीं है. इट इज नॉट दी 10 टाइम्स. 10 टाइम्स नहीं है ना लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इज नॉट दी 10 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म. तो इस केस में आपका सीरीज फैक्टर कुछ अलग ही आएगा. 10 की पावर के फॉर्म में नहीं आएगा आपका सीरीज फैक्टर, है ना. इस क्वेश्चन में हल्का सा ये चेंज है कि आपका जो सीरीज फैक्टर है वो 10 की पावर के फॉर्म में नहीं आएगा. तो आप लास्ट टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट टर्म इज 40, सीरीज फैक्टर इज 5, n वैल्यू इज 7, 7 minus 1 will be equal to 630. When you will solve it, 5 to the power 6 is 630 और 63 divided by 4. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपको 15.5. हाँ जो भी आ रहा होगा, है ना. और उसकी पावर 1/6 और कर दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज फैक्टर हो जाएगा. फिर उस सीरीज फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तब हमको लास्ट टर्म 630 अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. तो आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो. कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे. हाँ कर लेंगे. और आंसर्स मिला लीजिएगा. भंडारी की बुक में अनसॉल्व्ड में दिया हुआ ये क्वेश्चन और वहाँ आंसर्स गिवन है. तो जो भी आपके आंसर्स आए प्लीज मैच दोज आंसर्स. और कोई अगर आपको डिफिकल्टी है देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो ये हमने. अब बताइए इसको भी मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें. पढ़ के देखिए. इट इज रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्डाइज 11 स्पीड्स फ्रॉम 72 टू. तो फर्स्ट टर्म Yes, कितना sir, है, हो जाएगा. लास्ट टर्म कितना है, 720 है. और ये स्पीड का क्वेश्चन है ना. तो हमने देखो कई तरह के क्वेश्चन करे हैं. ये स्पीड का हो गया. इससे पहले हमने डायमीटर का क्वेश्चन किया था. R10 सीरीज लग जाएगी फिर से. वेरी गुड. R10 लग जाएगी और 11 टर्म्स अपने आप आ जाएंगे. और देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जो रेशियो है वो 10 का है, 10 टाइम्स का रेशियो है. तो बिल्कुल R10 आ जाएगी. और मशीन टूल के लिए आरपीएम हो जाएंगी. डायमीटर हो गया, है ना. ट्रैक्टर की कैपेसिटीज, डंपर कैपेसिटीज, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली गेट वगैरह में भी आ जाते हैं. और आपके एग्जाम में भी 1 या 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. तो चलिए काफी क्वेश्चन सब कर चुके हैं. अब मैं जरा सा बोर्ड को शेयर कर रहा हूँ, है ना. पीपीटी को मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ. हाँ जी, बोर्ड इज विजिबल टू यू. यस सर. ओके, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डिजिग्नेशन ऑफ स्टील्स पे. डिजिग्नेशन ऑफ स्टील्स, दिस इज द टॉपिक, है ना. तो डिजिग्नेशन ऑफ द स्टील जो है तो कई तरह से किया जाता है. एक तो हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिजिग्नेट कर देते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. तो जैसे कि मान लीजिए कई तरह से डिजिग्नेशन होता है. स्टील्स हो सकता है या आयरन हो सकता है. कास्ट आयरन का भी डिजिग्नेशन होता है, कास्ट स्टील का भी डिजिग्नेशन होता है.
काफी चीजें होती है। कास्ट स्टील के लिए जनरली हम CS वर्ड का यूज करते हैं डिजिग्नेशन में, कास्ट स्टील, है ना। कास्ट आयरन के लिए हम FG वर्ड का यूज कर लेते हैं, है ना। ग्रेफाइट फ्लेक्स, FG का जो फुल फॉर्म है वो ग्रेफाइट फ्लेक्स। तो मान लीजिए कि मैंने लिखा FG 350, तो इसका मतलब है FG means it is representing cast iron and 350 means it is representing the ultimate tensile strength। तो FG 350 का मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे कि मटेरियल है means it is a grey cast iron and it is having ultimate tensile strength 350, ठीक है। इसी तरह से CS 450, तो कास्ट स्टील it is having a strength of 450 megapascal। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेंथ का डिजिग्नेशन होता है। तो इस डिजिग्नेशन में आपकी जो मशीन डिजाइन डाटा बुक है ना, मशीन डिजाइन डाटा बुक बाय द ऑथर भंडारी और बाय द महादेवन, भंडारी इज बेस्ट। तो उस भंडारी में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा डिजिग्नेशन ऑफ स्टील, और वहां पर ये सब रूल वहां पे दिए होंगे कि कैसे कैसे डिजिग्नेट करते हैं, है ना। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्टील है और आप बताइए इसका डिजिग्नेशन क्या होगा, या रिवर्स क्वेश्चन हो सकता है कि ये डिजिग्नेशन है तो इसका मीनिंग क्या होगा, है ना। तो एक तो स्ट्रेंथ के बेस पर हम डिजिग्नेशन करते हैं और दूसरा डिजिग्नेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो मान लीजिए कि मैंने लिखा 40C8, तो इस 40C8 का क्या मतलब है, तो ये 40C8 का मतलब है C फॉर कार्बन। जो पहला टर्म होता है 40, ये कार्बन की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। सो कार्बन इज 40 डिवाइडेड बाई 100, 100 का फैक्टर इसमें यूज होता है। सो कार्बन इज 0.4%, हाउ मच परसेंट, 0.4%। तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है पहला टर्म, और जो लास्ट टर्म है वो मैग्नीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीज की वैल्यू हो गई 8 डिवाइडेड बाई 10। तो कार्बन में जो फैक्टर है वो 100 का है और 8 मैग्नीज में जो फैक्टर है वो 10 का है। ये फिक्स है, कार्बन फैक्टर इज 100, मैग्नीज फैक्टर इज 10। सो द डिजिग्नेशन विल गिव यू 0.8% मैग्नीज, ठीक है। तो ये 40C8 जो है ये PCS कैटेगरी में आ गया, प्लेन कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील के डिजिग्नेशन ऐसे ही होंगे 40C8, 50C8, 60C8 लाइक दिस। मान लीजिए मैंने लिखा 30C12, तो इसका मतलब कार्बन कितना परसेंट हो गया, 0.3, वेरी गुड। मैग्नीज कितना हो गया, 1.2। 1.2%, है ना। तो ये प्लेन कार्बन स्टील की डेजिग्नेशन हो गई। कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ डाटा बुक में दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डाटा बुक की हेल्प ले लेना, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका डिजिग्नेशन बताओ, है ना। अभी डिजिग्नेशन पे हम और बात करने वाले हैं, थोड़ा टिपिकल डिजिग्नेशन करेंगे। तो डिजिग्नेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया प्लेन कार्बन स्टील का डिजिग्नेशन, इसका बता दिया प्लेन कार्बन स्टील का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया 40C8, और आप अपने आप समझ गए कार्बन 0.4% है, मैग्नीज 0.8% है। अब हम दूसरे डिजिग्नेशन पे आते हैं, सेकंड डिजिग्नेशन अलॉय स्टील। तो जब प्लेन कार्बन स्टील में अलॉइंग एलिमेंट मिक्स कर दिए जाते हैं, कौन से एलिमेंट मिक्स कर दिए जाते हैं बताइए, अलॉइंग एलिमेंट। और अलॉइंग एलिमेंट में कौन कौन आ जाता है, बहुत सारे अलॉइंग एलिमेंट होते हैं, जैसे क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम है ना, निकल है, इस तरह से काफी सारे अलॉइंग एलिमेंट हो सकते हैं। तो अलॉय स्टील के डिजिग्नेशन के लिए एक अलग रूल है। हमको रूल यह है कि सबसे पहले तो हमको एक लेटर यूज करना है, कैपिटल एक्स। तो जैसे ही आप कैपिटल एक्स देखें तो आप तुरंत समझ जाएं कि किसकी बात हो रही है, अलॉय स्टील की बात हो रही है। देखो पुराने वाले प्लेन कार्बन स्टील के डिजिग्नेशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वहां पर कोई अलॉइंग एलिमेंट हो, उसके अंदर केवल क्या है, कार्बन है और मैग्नीज है।
केवल दो ही चीजें। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए मैंने लिखा, एक मिनट, ये अलॉय स्टील की बात हो रही है और एक इसके बाद टर्म आएगा हाई अलॉय स्टील, है ना। क्या टर्म आएगा? तीसरा टर्म आएगा हाई अलॉय स्टील। तो ये मैं गलत बता गया हूं आपको, एक्स जो है यहाँ पे यूज होगा, हाई अलॉय स्टील एक्स में यूज होता है, अलॉय स्टील में यूज नहीं होगा। अलॉय स्टील में तो हम क्या करेंगे, कार्बन की वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 40 Cr4 मोलबिडेनम 2। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो टर्म है वो तो रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को ही। तो कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई? 40/100 यानी कि 0.4%। उसके बाद Cr मतलब क्रोमियम, और क्रोमियम की परसेंटेज कितनी दी हुई है? तो क्रोमियम इज गिवन बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। क्रोमियम का एक फैक्टर है। अब देखो ये फैक्टर सबके अलग अलग हैं। आप कह सकते हैं हम फैक्टर्स कहाँ तक याद रखें, किसी का 100 का फैक्टर है, किसी का 10 का फैक्टर है, किसी का 4 का फैक्टर है ना। सबके फैक्टर अलग अलग है। तो यदि ये फैक्टर्स आपको मशीन डिजाइन डाटा बुक जो आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीजें दी हुई है। तो क्रोमियम का फैक्टर 4 होता है, तो आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्रोमियम की वैल्यू कितनी हो गई? 1% हो गई। अब मॉलिब्डेनम पे आते हैं। तो मॉलिब्डेनम का जो फैक्टर होता है वो 10 होता है, तो 2/10 यानी कि 0.2% हो गई। तो ये डिजिग्नेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ए अलॉय स्टील, इट इज एन अलॉय स्टील विथ कार्बन परसेंटेज 1%, विथ 0.4% कार्बन, 1% क्रोमियम, 0.2% मॉलिब्डेनम। सो जैसे अब इसमें देखेंगे आप, मैग्नीज कहीं भी नहीं है ना। फिलहाल मैग्नीज इसमें कहीं नहीं है, इसमें अलॉइंग एलिमेंट्स आ गए। यदि आपको क्रोमियम नजर आ जाए, मॉलिब्डेनम नजर आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि कौन सी स्टील है, इट इज एन अलॉय स्टील। और यदि आपको कोई भी अलॉइंग एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है, केवल कार्बन नजर आ रहा है, और ये सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली मैग्नीज मान लिया जाता है, यदि कुछ भी नहीं लिखा है कार्बन के अलावा, तो यहाँ पर सेकंड टर्म मैग्नीज मान लिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्या इसमें कहीं कार्बन वर्ड आया है अलॉय स्टील में? तो अलॉय स्टील की डेजिग्नेशन में कार्बन को क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। तो बस माना जाता है कि फर्स्ट टर्म कार्बन है, लेकिन कार्बन का सिंबल नहीं लिखा जाता है। तो आई थिंक प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील आपको क्लियर हो गए होंगे, और कुछ भी याद नहीं करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन दी डिजाइन डाटा बुक। तो सबसे पहले आपने पीसीएस समझ लिया 40C8, फिर आपने अलॉय स्टील समझ लिया। अलॉय स्टील में आपका एग्जांपल था 40, है ना। उसके बाद क्रोमियम 4, मॉलिब्डेनम 2, इस तरह से। अब हम एक तीसरे एग्जांपल पे आ रहे हैं, उसका है हाई अलॉय स्टील। हाई अलॉय स्टील में वर्ड लगेगा X, और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा X10, क्रोमियम 18, निकेल 9। ठीक है, तो इस डिजिग्नेशन का मतलब ये है कि X वर्ड से आपको ये पता लगेगा कि ये हाई अलॉय है। ठीक है, अब जो सेकंड वर्ड है 10, तो 10 आपका कार्बन परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज 10/100, मतलब 0.1% इसमें कार्बन है। उसके बाद क्रोमियम वर्ड आ गया, तो 18% इसके अंदर क्रोमियम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि यहाँ पे क्रोमियम होता 18 का वर्ड होता क्रोमियम का अलॉय स्टील के केस में, तो यहाँ पर तो फैक्टर लगता 18/4 यानी कि 4.5% क्रोमियम होता। लेकिन हाई अलॉय के केस में अलॉइंग एलिमेंट्स में कोई भी फैक्टर नहीं लगाया जाता है, जो लिखा होता है वही उसकी परसेंटेज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फैक्टर यूज होते हैं वो अलॉय स्टील में यूज होते हैं अलॉइंग एलिमेंट्स के लिए। हाई अलॉय स्टील में जो भी वैल्यू लिखी होगी, 18 मीन्स 18, 9 मीन्स 9, तो यहाँ पर क्रोमियम इज 18%, नॉट 4.5%, है ना। सिमिलरली फॉर निकेल इट इज 9%। और यदि हम यहाँ पे यूज
हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो सर। चलेगा सर हाँ जी, मैं एम आई ऑडिबल? यस सर डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ नेट की प्रॉब्लम से। चलिए मैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ एंड टेकिंग द व्हाइट बोर्ड अगेन। इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल टू यू? यस सर तो हम पीसीएस की बात कर चुके, 40 सीए, थोड़ा फास्ट चलूंगा। हम अलॉय स्टील की बात कर चुके, है ना, 40 क्रोमियम निकेल, है ना, क्रोमियम 4 निकेल 2 जो भी है अलॉय स्टील हो गया। उसके बाद हमने हाई अलॉय की बात कर ली। हाई अलॉय में एक वर्ड आएगा कैपिटल एक्स, है ना, कैपिटल एक्स आने के बाद में वैल्यूज आ जाएंगी क्रोमियम 18 निकेल 9। ठीक है, यहाँ फैक्टर्स का यूज होता है, यहाँ पे फैक्टर्स का यूज नहीं होता है अलॉइंग एलिमेंट के लिए, लेकिन कार्बन के लिए फैक्टर का यूज हर जगह होता है ना, कार्बन के लिए फैक्टर का यूज हर जगह होता है, चाहे वो कोई भी स्टील हो। अब इसके बाद हम आते हैं एक और स्टील जिसका नाम है हाई स्पीड स्टील। माइक म्यूट कर लीजिए। हाई स्पीड स्टील के लिए वी आर यूजिंग ए वर्ड एक्सटी, है ना, एक्सटी। एक्सटी के बाद मान लीजिए मैंने एक डेजिग्नेशन लिखा 75, देन टंगस्टन 18, है ना, W18, क्रोमियम 4, वेनेडियम 1, है ना, मान लीजिए ये डेजिग्नेशन है। तो अब इस डेजिग्नेशन से आप ये समझेंगे कि एक्सटी का मतलब ये हाई स्पीड स्टील है या टूल स्टील है, टूल स्टील। तो हाई स्पीड स्टील टूल स्टील है और 75 कार्बन परसेंटेज के लिए है। तो कार्बन परसेंटेज इज 0.75%। कार्बन परसेंटेज में हमेशा 100 से डिवाइड होगा, सो इट इज 0.75%। टंगस्टन इज 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%। जो जैसा लिखा होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। कोई फैक्टर नहीं यूज होता है, ना यहाँ पे कोई फैक्टर यूज होता है, ना यहाँ पे कोई फैक्टर यूज होता है। फैक्टर यूज स्टील में। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 तरह की डिजिग्नेशन बता दी। एक लास्ट डिजिग्नेशन और बता रहा हूँ, है ना, एक लास्ट डिजिग्नेशन है तो ये सर एलॉय और हाई स्पीड एलॉय में अंतर कैसे पता चलेगा सर? हाँ देखो बहुत आसान है। अलॉय के अंदर तो कैपिटल एक्स यूज हो रहा है, और हाई अलॉय है, हाई किसमें पूछ रहे हो डिफरेंस, अलॉय और हाई अलॉय में? यस सर। हाँ तो देखो अलॉय में, अलॉय वाले में तो एक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। जो हाई अलॉय होगा उसमें इनिशियली स्टार्टिंग होगी कैपिटल एक्स से। ठीक है, इसमें कोई भी टर्म आएगा, मान लीजिए कार्बन 70, तो 0.7% कार्बन हो गया। इसके बाद में अलॉइंग एलिमेंट की डिजिग्नेशन आ जाएगी, चाहे मोलिब्डेनम हो, क्रोमियम हो, निकेल हो। जैसे क्रोमियम को मोलिब्डेनम 2, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अलॉय स्टील को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कार्बन 0.7%, क्रोमियम में क्रोमियम का फैक्टर से डिवाइड कर दो टेबल देख करके, मोलिब्डेनम का फैक्टर डिवाइड कर दो, निकेल का फैक्टर डिवाइड कर दो। और हाई अलॉय के केस में मान लो हम इसी डिजिग्नेशन को रखें, X70, क्रोमियम 4, मोलिब्डेनम 2, निकेल 1, मान लीजिए ये सेम है, केवल इसमें क्या लगा हुआ है, कैपिटल एक्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हाई अलॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई? 0.7 हो गई। यहाँ पर भी 0.7 कार्बन, कार्बन दोनों में सेम। यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू में फैक्टर लग गया 4/4 यानी कि 1%। यहाँ पे क्रोमियम में कोई फैक्टर नहीं लगेगा, 4 का 4% विदाउट एनी फैक्टर। फैक्टर लगाओगे भी तो 1 का फैक्टर होता है, 4/1 इज 4, है ना।
तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा फैक्टर से, यहाँ पे डिवीजन होता है। अब आप जो पूछ रहे थे पहचान कैसे करोगे, तो यदि एक्स वर्ड का यूज हो रहा है तो हाई अलॉय है, और एक्स वर्ड का यूज नहीं हो रहा है तो अलॉय है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस सर। तो अब मैं एक डिजिग्नेशन और बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको 4 बता दिए, एक पीसीएस बता दिया, एक अलॉय बता दिया अलॉय स्टील, एक हाई अलॉय स्टील बता दिया, और एक मैंने आपको हाई स्पीड टूल स्टील बता दिया, है ना। टूल स्टील भी उसको बोल सकते हैं। 4 हो गए। अब 5वां नाम आ रहे हैं, एक लास्ट है फ्री कटिंग स्टील। ये 5 ही हमारे सिलेबस के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्री कटिंग स्टील में क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 25C, सी के बाद मैंने लिखा 12S14, ठीक है। अब इसमें देखो पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को ही करेगा, है ना। तो कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25%, है ना। कार्बन में तो हमेशा 100 का फैक्टर लगना ही लगना है, आंख बंद करके मान लीजिए आप। अब दूसरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीज को रिप्रेजेंट करता है ना। मैग्नीज, जब सी लिखा होगा तो दूसरा टर्म मैग्नीज को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पर भी 25C12 लिखे हैं तो प्लेन कार्बन स्टील है, तो पहला टर्म कार्बन को, दूसरा टर्म मैग्नीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब साथ में सल्फर आ जाए, है ना, या तो सल्फर आ जाए या फास्फोरस आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री कटिंग स्टील में जनरली सल्फर और फास्फोरस मिला दिए जाते हैं, जिससे इसकी कटिंग मशीनिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है, तो ये फ्री कटिंग स्टील कहलाती है। तो इसके अंदर मैग्नीज कितना परसेंट हो गया, 12, तो 12 में फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 का, तो 1.2% हो गया। अब आया सल्फर, तो सल्फर के केस में भी फैक्टर होता है, और इनके फैक्टर 100 होते हैं, तो ये हो गया 14/100, यानी कि 0.14%, ठीक है। तो सल्फर का फैक्टर भी 100 है, फास्फोरस का फैक्टर भी 100 है ना। लेड भी मिला देते हैं कभी कभी, लेड का भी यूज कर लेते हैं, तो लेड का फैक्टर भी 100 है। तो ये मैंने आपको 5 तरह के डेजिग्नेशन बता दिए। अभी हमने इसका फॉरवर्ड फ्लो समझा है। क्या समझा है हमने इसका, फॉरवर्ड फ्लो। जैसे कि मैंने कोई भी डेजिग्नेशन आपको दे दिया और आपने उसका केमिकल कंपोजिशन बता दिया, इसका आपको बैकवर्ड फ्लो भी आना चाहिए। यदि आपको केमिकल कंपोजिशन दे दिया तो आप उसका फॉरवर्ड कंपोजिशन, फॉरवर्ड डेजिग्नेशन बता दें। तो चलिए थोड़ा सा एक उल्टी एक्सरसाइज करते हैं, है ना। एक उल्टी एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। चलिए पहला मैंने दिया Fg150, बताइए क्या मीनिंग है इसका। स्ट्रेंथ है इसकी 150। नहीं, स्टील नहीं है ये। Fg का मतलब ग्रे कास्ट आयरन, है ना। Fg का मतलब क्या है, ग्रे कास्ट आयरन, है ना। तो ग्रे कास्ट आयरन विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 150 मेगापास्कल। अब देखिए एक डेजिग्नेशन आपको दे रहा हूं, कार्बन 0.35 से लेके 0.45% के बीच में है, 0.35 से लेके 0.45% के बीच में है। क्रोमियम 0.9 से लेके 1.2% के बीच में है, ठीक है। और ये अलॉय स्टील है, अलॉय स्टील है। तो बताइए अब इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, आप में से कोई भी बताइए। कार्बन परसेंटेज दी हुई है, अलॉइंग एलिमेंट क्रोमियम है, और हमने कार्बन क्रोमियम मिक्स किया, परसेंटेज आपको दे दी है, एक रेंज में दी है परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दी है, हमने रेंज में परसेंटेज दी है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। जैसे 0.35 और 0.45, तो इनका यदि एवरेज निकालें तो 0.35 प्लस 0.45 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, बोलिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 40। 0.40% कार्बन हो गया। अब कार्बन के लिए फैक्टर कितना होता है, 100, तो 0.4 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100, है ना। अब अलॉय स्टील में कार्बन के सिंबल का यूज तो हम करते नहीं है, सीधे सीधे अलॉइंग एलिमेंट का सिंबल आएगा। तो अलॉइंग एलिमेंट का सिंबल क्या है, क्रोमियम, तो क्रोमियम आएगा। अब सर रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है सर ये एक बार फिर से बता दीजिएगा। यस 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 यस, मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखो मैं इसे थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन की रेंज दी हुई है, क्रोमियम की रेंज दी हुई है,
ये केमिकल कंपोजिशन आपको दिया हुआ है और आपको अब इसको डिजिग्नेशन बताना है। उल्टा क्वेश्चन है ये। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिजिग्नेशन से कंपोजिशन निकाल रहे थे, अब हम कंपोजिशन से डिजिग्नेशन निकाल रहे हैं। तो जब कंपोजिशन एग्जैक्ट फॉर्म में ना दिया हो, रेंज में दिया हो, तो आपको एवरेज लेना है इसका। तो आप इसका एवरेज लीजिए, 0.35 प्लस 0.45 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका एवरेज आ गया 0.40% कार्बन। कार्बन 0.40% है, इसका मतलब इसके डिजिग्नेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40 इंटू 100 कितना आ गया, 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। उसके बाद अलॉइंग एलिमेंट लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम की हमको रेंज दे रखी है, इस रेंज का दोबारा से हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आएगा 0.9 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, सॉल्व करिए। 0.9 और 1.2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना आएगा एवरेज, कोई भी एक बता दीजिए। हाँ चलिए मैं निकाल, 0.9 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2 0.105 ये आ रहा है 1.05 है ना, 1.05 आ रहा है। ठीक है, अब 1.05 में हम देखेंगे कि क्रोमियम का फैक्टर कितना होता है, 4 का। अलॉइंग एलिमेंट में, अलॉइंग स्टील में क्रोमियम का फैक्टर 4 का होता है। तो 1.05 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.05 इंटू 4 कितना हो गया, 1.20। तो 1.2 आ गया, तो क्रोमियम के लिए हम लिख देंगे 1.2। तो ये इसका डेजिग्नेशन हो जाएगा। 1.20 होगा। हाँ 1.2 या 1.20 एक ही बात है। तो देखो, 4.20 हाँ तो हमें ये दिया हुआ था और हमने डेजिग्नेशन फाइंड कर लिया, करेक्ट। तो इस तरह से हम जो है चीजों को निकालते हैं। अब हमारा टाइम हो रहा है, क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आज के क्लास में हमने क्या समझा है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं न्यूमेरिकल, और कुछ हमने अलॉय स्टील की डेजिग्नेशन को, प्लेन कार्बन स्टील की डेजिग्नेशन को समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल सिलेक्शन पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और आज लैब की क्लास है, तो कितने बजे से, 2 बजे से, है ना। तो लैब की क्लास में लैब का काम करेंगे और कल की क्लास में हम मटेरियल सिलेक्शन पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन को डील करके ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो यदि आपकी कोई क्वेरी नहीं है देन आई कैन स्टॉप द क्लास, है ना। थैंक यू वेरी मच, आई एम लीविंग द क्लास नाउ। थैंक यू सर। ओके वेल। स्टॉप शेयर के बाद स्टॉप शेयर करना जब एंड होगा।